न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अंबानी ने अपने शिक्षण संस्थान रहे आईसीटी को 151 करोड़ रुपए का दान किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बसपा के नेता का विवादित बयान। ईद उल अजहा पर मुरादाबाद में हजारों ने अदा की नमाज, सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त। तो खबरें विस्तार से। अंबानी ने अपने शिक्षण संस्थान रहे आईसीटी को 151 करोड़ रुपए का किया है दान। आरआईएल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने अपने शिक्षण संस्थान रहे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को बिना शर्त 151 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। अंबानी ने 1970 के दशक में आईसीटी से स्नातक किया था। उन्होंने शुक्रवार को आईसीटी में 3 घंटे से अधिक समय बिताया। वह प्रोफेसर एमएम शर्मा की जीवनी डिवाइन साइंटिस्ट के प्रकाशन के लिए आयोजित समारोह में शामिल होने आए थे। अंबानी ने याद किया था कि कैसे यूडीसीटी में प्रोफेसर शर्मा द्वारा दिए गए पहले व्याख्यान ने उन्हें प्रेरित किया और कैसे शर्मा ने बाद में भारत के आर्थिक सुधारों के शांत वास्तुकार की भूमिका निभाई। We must make India a deep tech nation and a world leader in advanced manufacturing using AI and other breakthrough technologies. Our businesses should get tightly integrated with academia, especially by bringing a problem-solving approach to learning and research. Today, when many globally reputed universities are facing a crisis, India has the best opportunity to attract back the most talented students and faculties from around the world. Announce 151 crores to ICT on an unconditional basis, and I am very, very pleased to announce that for Professor Sharma. A very warm good evening to each and every one of you. Let me begin by doing the Guru Vandana to all those who taught me at my beloved alma mater. Professor Sharma and Professor J.B. Joshi were my professors. So in other cultures, Guru is only a teacher. परंतु भारतीय संस्कृति में गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है. Therefore, for me, coming to UDCT campus, I still call it UDCT, has always felt like coming to a sacred temple. Professor Sharma, my warm respects to you today as my most respected guru, my mentor, and my enduring source of inspiration. Thank you for everything that you have done for me. Anita ji, I join all others in this hall in warmly congratulating you. It is indeed a Herculean task to chronicle the life of a legend like Professor Sharma, but you have done full justice to this mission. The biography is aptly titled The Divine Scientist. I'm sure it will inspire many generations of students, teachers, entrepreneurs, and others in India and around the world. Let us all give a big hand to Anita ji and the publishers of this book for their remarkable achievement. Friends, while I can talk about my relationship with Professor Sharma for a long time, I would like to make only 4 points today to reflect the immense impact he has had in shaping my life. First, in the mid-70s, when I came here as a student, it was not ICT, it was UDCT. I had deliberately chosen UDCT over IIT Bombay. To this day, I remember Professor Sharma's very first lecture and how, listening to him, I felt assured that I had made the right choice from moving to IIT to UDCT. Soon I realized that Professor Sharma is an alchemist, not of metals, but of minds. He has the power to transform curiosity into knowledge, knowledge into commercial value, and both knowledge and value into everlasting wisdom.
He shaped not only my understanding of chemical engineering, but also my understanding of leadership, responsibility, and service to society. Such was his influence on me that the UDCT campus in Matunga became my second home. Second, among Professor Sharma's many evergreen teachings, one that has stayed with me is the principle of economics of chemistry. He taught us not only the magic of molecules, but also how molecules make money and create immense societal value. A perfect blend of scientific insight and business acumen. That was Professor Sharma, and in the 80s I called him a Banya chemical engineering professor. He taught us all to be Banyas, which is why even after I graduated and began assisting my father in building Reliance, I continued to consult Professor Sharma at all steps in building Reliance, big and small. Third, I also learned my first lesson in sustainability from him. As the book says, Professor Sharma does not like the word byproduct. He calls it co-product. He insists that nothing should be wasted in manufacturing and everything should be turned into value. This is how we can create perfect harmony between economy and ecology. And this is how, under Professor Sharma's guidance, Reliance has achieved maximum backward and forward integration in the value chain. Sir, we have taken your vision and gone from crude oil to PTA to PET bottle all the way to Campa Cola to millions of Indians' homes. Let me tell you that he never asked for all his consultation for anything in return. It was only substantial value addition, but zero royalty. Ladies and gentlemen, fourth, the book describes Professor Sharma as a selfless Gyan Yogi and Karma Yogi. But to me, he is much more. He is also a yogi of Samruddhi, a yogi of national prosperity. Professor Sharma believes that when Saraswati and Lakshmi work together, no power on earth can prevent India's emergence as one of the world's most prosperous nations. Today, let me share with you one less known fact about him. Professor Sharma, to my mind, was one of the quiet architects of India's economic reforms. In the 70s and 80s was an era of extreme economic scarcity and regulatory shackles. Like my father Dhirubhai Ambani, he had a burning desire to change Indian industry from scarcity to global leadership. As the book mentions, I was present in all the meetings between him and my father. These two bold visionaries believed that science and technology, in alliance with private entrepreneurship, would open the floodgates of prosperity. They both concluded that the time had come for India to think big and build world-class manufacturing facilities. I think, though Vibhu and I went independently, right, this was a time where I saw Professor Sharma speak Gujarati. He and my father spoke in Gujarati, and I think that his Gujarati was very simple and my father understood it. So we were just saying, and he said, "Chalo, aane, don't even talk about it, aane khada ma feki diyo, and aane kari nakho." So the decisions was pretty simple between them, and that was also a time that Professor Sharma was in Delhi. I still remember him going to the then Petroleum Secretary, Lavraj Kumar, and the Petroleum Minister to saying that it's stupid for India to reserve chemical industry only for the public sector. You should open it.
And and he had many such roles in terms of influences with the policymakers to say that if you want India to grow, you must allow Indian players to build scale and get out of the license permit Raj, reduce dependence on imports and compete globally. He told them that brand India must be known across the 7 seas. His voice was so credible and authoritative that they not only listened to him, but also accepted his advice and ideas. Today, from that work in the 70s and 80s, 5 decades later, we see results. India's chemical industry is now a global force. For this reason, I say that Professor M.M. Sharma is not only our guru, but also a Rashtra Guru, a guru of Bharat. My fellow alumni and students of ICT, Indian culture places an obligation on every student to repay our debt to the Guru in the form of Guru Dakshina. So how can we as a nation pay a befitting Guru Dakshina to Professor M.M. Sharma and all the professors that we have? Let me present 4 ideas. First, we must make India a deep tech nation and a world leader in advanced manufacturing using AI and other breakthrough technologies. Our universities, institutions of higher learning, and research laboratories should have a strong focus on producing tomorrow's technologies, especially in proteins, enzymes, and other areas of chemistry that can cure complex diseases, prolong human life, and create new materials, clean up environment, and boost productivity exponentially. My second idea, after the 1990s, the private sector unlocked the potential of India's economic growth. Now it should also unlock the potential of India's education development. Our businesses should get tightly integrated with academia, especially by bringing a problem-solving approach to learning and research. ICT has shown the way. Now government, industry, and the best minds in academia should join hands to transform our universities into world-class institutions. Today, when many globally reputed universities are facing a crisis, India has the best opportunity to attract back the most talented students and faculties from around the world. My third idea, education is not only about creating material and financial value. As Professor M.M. Sharma's life teaches us, education is even more about inculcating human values. He has taught us that the power of character is more important than the power of material wealth. Character is that intangible wealth that comes with integrity, honesty, humility, empathy, and other values rooted in India's priceless culture, which was also so amply described by Dr. Premna in her video. My fourth idea, Professor Sharma belongs to that rare community of teachers for whom teaching itself is their dharma. Their passion is to make a difference to the life of humanity. The word that best captures Professor Sharma's personality is that he is an influencer. The word influencer has gained currency in recent times in the age of social media, but Professor Sharma has been an influencer from the 60s. He is an influencer with a difference. Today, India has the world's largest population of youth. We need tens of thousands of gurus like him who can teach our youth to combine success with sanskar. This combination is necessary to realize the dreams of Viksit Bharat. And my fifth idea is not an idea, it's an instruction that Professor Sharma gives me, and when, like he gave to my father, when he tells us something, we just listen, we don't think. So he told me, Mukesh, like you have to do something big for ICT
So I said, sir, you tell me whatever you want. So he says, announce 151 crores to ICT on an unconditional basis. And I am very, very pleased to announce that for Professor Sharma. Thank you. Dignitaries and friends, as I stand before you, my heart is filled with nostalgia. I am transported back to my student days when I saw great dreams for India. And what Professor J.B. Joshi said about ambience, right? The moving spirit behind ambience in UDCT, now ICT, and whenever I visit this campus is only Professor Sharma. And this will remain forever. Today, the star of India is shining bright in the global sky. So I am filled with hope and confidence in India's future. So I will conclude today by telling Professor Sharma's grandchildren, all the young people and students in this audience and ICT, what Professor Sharma told me in the late 70s is even true today. Dream big, study well, work with dedication, discipline, and a spirit of service, and bring greater glory and greatness to India. The opportunity for India is even greater today than it was 40 years ago. बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर ममता के नेता का विवादित बयान। एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान भारत पर तीखे हमले बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इससे अछूती नहीं है। वो भी इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया एक युद्ध था। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने चक्रवर्ती के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कार्रवाई है, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने सशस्त्र बलों की वीरता को कम आंका है। একটু আগে কীর্তি আজাদজি বলছিল, আপনারা শুনেছেন তো, হ্যাঁ, যে কিভাবে সিঁদুর খেলা শুরু করেছে বিজেপি সরকার। গোটাটাই যুদ্ধ খেলা, গোটাটাই নাটক। পাকিস্তানের সঙ্গে ফিটিং করেছে, ফিটিং করে আমি বলুন, একটা পহেলগাঁওয়ে পর্যটকরা বেড়াতে এসছে। আপনারা কেউ কাশ্মীর গেছেন? হাত তুলুন। কাশ্মীর গেছেন তো? কাশ্মীরে দেখেছেন 10 ফুট দূরে ওই ইনসাস রাইফেল নিয়ে মিলিটারিরা দাঁড়িয়ে থাকে? দেখেছেন আপনারা? দেখেছেন কাশ্মীরে কাঁটা তার দিয়ে রোড ব্লকেজের রাখা থাকে? এবং পহেলগাঁও কেন প্রতিটা টুরিস্ট স্পটে মিলিটারিতে ভরা থাকে, মিলিটারি গাইড করে ওখানে। তাহলে ভাই, একদল দুষ্কৃতকারী চলে এলো पहलगांव, किंतु तार 3 दिन आगे सब प्रोटेक्शन। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईद उल अजहा पर मुरादाबाद में हजारों अदा की नमाज, सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त। मुरादाबाद यूपी ईद उल अजहा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कहते हैं कि यह रस्म हाल ही में शुरू नहीं हुई है, यह हजारों सालों से चली आ रही है। अब कुछ लोगों ने इस पर नाटक शुरू कर दिया, जैसे केक, कागज और आटे से बकरा बना। ये क्या नाटक है? क्या ये गुड़िया और टेडी बियर का खेल है? लोग कह रहे हैं कि ये प्रदूषण फैला रहा है। क्या जानवरों से कोई प्रदूषण होता है? क्या यहाँ पटाखे जल रहे हैं? अगर उनका खून नदियों में जा रहा है तो ये जानवरों का उत्पाद है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये कोई रसायन नहीं है। सत्ताधारी पार्टी लगातार बदनाम करने का कार्यक्रम चला रही है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है। तमाम ही देशवासियों को इसकी मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत पुराना रिचुअल है, तकरीबन 4000-5000 साल पर। बढ़ती खबर क्या? बकरीद पर महबूबा मुफ्ती ने फलस्तीन के लोगों के लिए मांगी दुआ। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ईद उल अजहा पर सभी को बधाई दी है। महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल दरगाह में नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फलस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उसको लेकर दुआ मांगी कि उनसे इस जुल्म से निजात मिले। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी मौजूद रही। मुफ्ती ने कहा कि हमने फिलिस्तीन के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की है। हम प्रार्थना करते हैं कि फिलिस्तीन जल्द ही इजराइल की तरफ से किए जा रहे अत्याचारों से मुक्त हो। दुर्भाग्य से सरकार ने इस पवित्र दिन पर जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी है और
मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया। मैं राज्य सरकार के खिलाफ ही विरोध करती हूँ, जो सिर्फ सब कुछ देख रही है और कुछ नहीं कर रही है। बढ़ती खबर की ओर, एनडीए की सरकार के 11 साल पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 9 जून को पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर सभी केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि अपनी 11 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के साथ साझा करें। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी। उन्होंने शनिवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान उनकी सरकार की कई पहलों से किसानों की समृद्धि बढ़ी है। इसके साथ ही कृषि में बदलाव सुनिश्चित हुआ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अपने मेहनतकश किसानों की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। बढ़ती खबर की ओर, 7 जून 2025 को पूरे भारत में ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार अमन शांति के साथ मनाया गया। इस ईद के पवित्र मुबारक मौके पर नागपुर मोमिनपुरा जमा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज में ईद की नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर नागपुर मोमिनपुरा जमा मस्जिद में नागपुर शहर का पुलिस दल बल मौजूद रहा और तहसील पुलिस स्टेशन का सीनियर स्टाफ भी मौजूद रहा। साथ ही साथ नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल साहब भी चीफ गेस्ट मौजूद रहे। नागपुर के एडिशनल कमिश्नर जॉइंट पुलिस कमिश्नर एसीपी अनिता मोर, डीसी महक स्वामी जॉन 3 मौजूद रहे और इनके अलावा नागपुर गांधी बाग तहसील पुलिस स्टेशन के सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख भी मौजूद रहे। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त की तरफ से और नागपुर शहर के सभी वरिष्ठ आला अधिकारी की तरफ से फूल और गुलदस्ता देकर मुस्लिम समाज का ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दी गई और सीपी साहब ने आखिर में सबको बकरीद मुबारकबाद कहा। मुस्लिम समाज की तरफ से भी पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल साहब का शुक्रिया अदा किया गया। हम सब लोग मिलकर इस तरह से काम करें कि पूरे समाज में और पूरे शहर में एक अच्छा संदेश जाए और इसी के साथ में अगर हम सब लोग इस तरह से काम करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी जो हमारे आने वाले नस्लें हैं, आने वाले बच्चे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और उनकी तरक्की के लिए और अपने शहर की तरक्की के लिए, शहर में शांतता रखने के लिए ये हमें करना ज़रूरी है। नहीं तो यही बच्चे हमसे कल पूछेंगे कि वे आपने क्या किया, आपकी वजह से तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम सब लोग जो इनसे बड़े हैं, हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि हम सब लोग मिल के एक अच्छा शहर, एक अच्छा माहौल तैयार करें। और जो ये त्यौहार है इसमें हम सब लोग एक अपनी जो आस्था है उस आस्था से मनाएं, किसी और को इसके वजह से ठेस ना पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। और यही हमारी कोशिश भी रहती है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, कोई भी गैर कानूनी चीज़ ना करे। दिन रात हम लोग इस दिशा में काम करते हैं। कई बार चीज़ें आप लोग नहीं पहुँचती होंगी, दिखती नहीं होंगी, परंतु हमारे जो पुलिस वाले हैं दिन रात एक ही शहर में शांतता रहे, सब खुश रहें, सबकी तरक्की हो, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो आप सब लोग जो है त्यौहार को अच्छे से मनाएं। अभी सब लोग आप जाएंगे घर में और कुर्बानी का आपका प्रोग्राम है, तो आप उसमें अपने परिवार को भी हम सब लोगों की तरफ से मुबारक दें। पूरा परिवार आपका खुश रहे, तरक्की करे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखो पीछे हो जाओ।
قال سنة أبيكم إبراهيم عليه ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم على ما هداكم अरे बेटे يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على هدانا الله ولله الحمد इसी तरीके से हमारे देश के अहिंसा हो गए सर। बढ़ते अगली खबर की ओर। हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग, कार पर गिरा पिछला हिस्सा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तकनीकी खराबी के चलते एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटकर कार पर गिर गया है। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हेलीकॉप्टर बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ जा रहा था। इसमें पायलट समेत 6 लोग सवार थे। सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कार पर गिर गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि कार में कोई सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी खराबी के चलते पायलट को यह लैंडिंग करनी पड़ी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बढ़ते की खबर की ओर। बागपत एक बकरीद ऐसे भी 20 लाख खर्च कर बचाई 200 जाने। बकरीद का त्योहार बलिदान और त्याग का माना जाता है। इस पर्व हर साल लाखों बकरों को हलाल किया जाता है। बकरीद पर बकरों की बलि के खिलाफ कई लोग आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक त्योहार को मनाने वालों में कोई खास बदलाव नहीं है। वहीं बागपत के मनोज जैन बकरीद से पहले हर साल सैकड़ों बकरों को खरीदकर उनकी जान बचाते हैं। मनोज जैन समुदाय द्वारा चलाई जाने वाली जीव दया संस्थान के अध्यक्ष हैं। इसी संस्था के माध्यम से पिछले साल मनोज जैन ने 124 बकरों की जान बचाई थी। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। बागपत में गौशाल की तर्ज पर यह संस्था एक बकराशाला चलाती है, जिसमें करीब 600 बकरे हैं। वहीं बकरीद से पहले विभिन्न स्थानों पर कुर्बानी के लिए लगाए गए 200 बकरों को मनोज जैन ने खरीद कर जीवन दान दिया है। सभी स्वस्थ बकरे खेतों में चराई के लिए जा रहे हैं। सभी स्वस्थ बकरे खेतों में चराई के लिए जा रहे हैं।
टाइम 9:10 का है। सभी बकरे खेतों में चराई के लिए जा रहे हैं। अगली खबर, देश की आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है, बोले मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा है कि देश की आजादी के लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। हर जगह आग भड़क उठी थी। इसके बाद आंदोलन की आग कभी शांत नहीं हुई, प्रयास जारी रहे। इन सब के योग से ही हमें आजादी मिल सकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, सामूहिक विचार की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा है कि सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ का काम एक दो लोगों का काम नहीं है। संघ जो भी करता है, जो भी बोलता है, वह सामूहिक निर्णय से ही तय होता है। स्वातंत्र्य कोणामुळे मिळालं अशी चर्चा चालते आपल्याकडे। खरं पाहिलं तर कोणा एकामुळे मिळालं का? 1857 पासून प्रयत्न सुरू झाले स्वातंत्र्याचे। तेव्हा जो सगळीकडे स्वातंत्र्य युद्धाचा आगडोंब उसळला, त्याच्यानंतर ती आग कधीच शांत झाली नाही। ती प्रेरणा सतत चालत राहिली। काळाच्या ओघामध्ये अनेक प्रकार कामांचे त्यातनं उभे राहिले, अनेक प्रकारचे प्रयत्न झाले आणि या सगळ्यांचा सम टोटल, ज्याला इंग्रजीत म्हणतो, असा परिणाम म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं। हे जरी खरं असलं तरी ज्यांच्या हयातीत ते मिळालं त्यांच्या खात्यामध्ये ते जाणार याच्यात काही वावगं नाही। कारण ती एक स्वीकारण्याची गोष्ट असते, श्रेय। श्रेय स्वीकारणं हेही ज्यांचं नाही त्यांच्या डोक्यावर आलं तर अहंकार येतो। श्रेय मिळालेलं पचवणं हे ज्यांना संभव आहे, इतकी खोली आणि उंची ज्यांच्या चरित्राची आहे त्यांनाच ते शक्य असतं आणि कोणाला तरी ते घ्यावं लागतं, म्हणून ते श्रेय असं कुठेतरी मिळतं। परंतु खरं हे सगळंच मिळून केलेलं काम असतं आणि प्रत्येकाचा त्याच्यात वाटा असतो। आणि तो वाटा या प्रकारचा असतो की कोणी काय केलं तर मला सरसंघ चालक केलं तर मला संघाविषयी बोलावं लागतं। निर्णय लोक येतात, त्यांच्यासमोर बसून त्यांना संघ सांगावा लागतो, त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं द्यावी लागतात। माझ्यापेक्षाही चांगला संघ सांगू शकणारे किंवा उत्तर देऊ शकणारे संघात आहेत, पण त्यांना ही जबाबदारी नाही आहे। तर मी हे केलं म्हणजे मी फार मोठा आहे असं नाही आहे। ते हे करत नाहीत म्हणजे त्यांना जमत नाही असं नाही आहे। महत्व कोण काय करतो याचं नाही आहे, कोण कसा आहे याचं महत्व आहे। संघाचा स्वयंसेवक हा दिसण्यापेक्षा असण्याकडे जास्त लक्ष देतो। दिसण्याचंही महत्व जगात आहे, ते संघ नाकारत नाही, स्वयंसेवक नाकारत नाही। परंतु असो आम्ही सुखाने पत्थर पायातील मंदिर उभवणे हेच आमुचे शील, हा त्याचा स्वभाव आहे। त्याच भावनेने एखाद्या वेळेला मंदिराचा कळस व्हायला त्याला सांगितलं तर तो होतो, कारण ते कामासाठी आवश्यक असतं म्हणून। पण त्याची पटेली खबर की ओर, सहारनपुर में टला बड़ा हादसा, सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी के सहारनपुर जिले में सेना के एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खबरों के अनुसार यह अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सरसाव एयरफोर्स स्टेशन से रूटीन अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार लैंडिंग के बाद सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सेना की तकनीकी टीम भी हेलीकॉप्टर की जाँच कर रही है।
अगली खबर, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि कावंडे सीमा पर हमला गांव या छत्तीसगढ़ से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आने वाला गांव है। पास में अबूझमाड़ का जंगल है और यहाँ प्रशासन भी नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमारी पुलिस ने यहाँ चौकी खोली है। इस चौकी की वजह से न सिर्फ पुलिस का दबदबा बढ़ा है, बल्कि हमने सुरक्षा की कमी को भी पूरा किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि हम मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त कर देंगे, इसलिए हम इस लक्ष्य को लेकर अच्छा काम चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र ने इसे अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। सर, कुछ समय पहले यहाँ पूरा नक्सलियों का साम्राज्य था। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पुलिस आउटपोस्ट बना, आज आप यहाँ पे आए हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इस पूरे इलाके में काम कर रही है? देखिए, जो कवंडे है ये एक प्रकार से सीमा पर पहला गांव या छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में जहाँ एंट्री होती है उस प्रकार का ये गांव है। और ये सारा इलाका ऐसा था कि बाजू में अबूझमाड़ का सारा पूरा जंगल है और यहाँ पर कोई भी प्रशासन भी पहुँच नहीं सकता था, लेकिन हमारी पुलिस ने यह आउटपोस्ट खोला। इस आउटपोस्ट के कारण केवल यहाँ पुलिस का डोमिनेंस तैयार नहीं हुआ, सिक्योरिटी वैक्यूम हमने भर के निकाली और उसके साथ साथ यहाँ 4G का टावर बनाया और पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की और पूरी सारी जो सरकार की योजना है वो योजनाएं भी इसी आउटपोस्ट के माध्यम से हम जनता को देते हैं, तो जनता में भी एक बहुत विश्वास इससे तैयार हुआ है। सर, जिस तरीके की लड़ाई पूरे देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही है, गृह मंत्री ने भी एक डेडलाइन दी, उस डेडलाइन को छूना क्या संभव है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने एक प्रण किया है कि मार्च 2026 तक हम देश को माओवाद से मुक्त करेंगे और उस दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। महाराष्ट्र ने तो पिछले 10 सालों में इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लाकर छोड़ दिया है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये था कि बीच में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट हो रही थी और वहां से माओवादी आकर यहाँ पर कार्रवाई करते थे। अब नई छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो ऑपरेशंस किए हैं उसने माओवादियों की कमर तोड़ दी है। उधर से वो सामने आ रहे हैं, इधर से हम पहुंच चुके हैं। जल्दी ही पूरा इलाका ये सिक्योरिटी वैक्यूम हम उसको भर देंगे, पुलिस का डोमिनेंस होगा और मुझे अब ये दिखाई पड़ता है कि मार्च 26 तक गृह मंत्री जी ने जो तय किया है हम उसको खत्म कर देंगे। तो जंगल से तो हम लोग माओवाद उन्मूलन कर रहे हैं, लेकिन एक नया हमारे पास चैलेंज है कि शहरी नक्सलिज्म, उसे टैकल। देखिए, जैसे ही जंगल से ये नक्सलिज्म खत्म होगा तो हमको ये पता है कि उसके बाद ये शहरी जो अर्बन माओइस्ट है ये बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव होंगे। उसका भी सामना हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारी इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का एक प्रकार से विश्वास उड़ जाए और देश में अराजकता तैयार हो, हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, हमारे संविधान पर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाए, इस प्रकार का प्रयास ये अर्बन माओइस्ट करते हैं। इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। एक समय पूरे विकास से दूर था ये इलाका, अब स्टील हब बन रहा है। देखिए, मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पर जो नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था उसको इंडस्ट्रियल मैग्नेट किया है। अब इतने बड़े पैमाने पर स्टील में यहाँ निवेश आ रहा है, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री आ रही है और आने वाले दिनों में ये स्टील हब ऑफ इंडिया बनने वाला है। लेकिन ये करते समय हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इसकी एक प्रकृति, एक प्रवृत्ति है, या कि जल, जमीन और जंगल इसको डिस्टर्ब किए बिना हम ये विकास करना चाहते हैं। तो आपने भी बोलते हुए कहा कि इस पूरे इलाके में आप स्कूटर से या फिर बाइक से घूमना चाहते हो, वो दिन कब आएगा? जल्दी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये पूरे इलाके में उस प्रकार से घूम पाएंगे। बढ़ती खबर क्या, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर डॉक्टर ने किया सुसाइड। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। यहाँ जूनियर डॉक्टर ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसके साथ रैगिंग की गई थी, जिसके बाद से वह काफी परेशान था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक जूनियर डॉक्टर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिवांश गुप्ता ने सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग से परेशान होकर सुसाइड किया है। मृतक के परिवार ने इस मामले की हाई लेवल कमेटी से जांच कराने की मांग की है। परिजनों ने इस घटना के लिए पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना को जिम्मेदार भी ठहराया। ये आज जो है, जब उनकी मदर भी अभी आई, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी शिवांश की, और शिवांश मेरा भतीजा था, तो उन्होंने डीन को भी क्लियर बोला कि मतलब तो रैगिंग के कारण मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है
और डीन ने सारे लड़कों को इतना दबा के रखा है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। डीन अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, जबकि क्लियर कट ये मामला रैगिंग का मामला। 3 दिन पहले उसकी रैगिंग हुई थी और उसने अपनी मदर को बताया कि हमारी रैगिंग हुई है। एक लड़के ने उसको 3 घंटे तक रोक के रखा, मारपीट की उसके साथ, उसको परेशान किया गया और लड़का डिप्रेशन में आ गया 3 दिन से। और चूँकि हॉस्टल में क्या उसका रूम पार्टनर भी नहीं था, तो लड़का थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तो बहुत जल्दी घबरा गया और उसने सुसाइड कर लिया। और परसों रात को जो इनके दोस्त है उनके साथ ये 1 बजे तक बैठा रहा और 2 लड़के थे, यूवी सिंह और एक मयंक, उनके घर गए और रात को 1 बजे तक बैठा रहा। तो उस लड़कों ने बताया कि ये बहुत टेंशन में था। और इसके बाद मैं अभी जब सुबह चाय पी रहा था दुकान पर, एक तो हॉस्टल के बगल में दुकान थी, तो उससे बात किया तो उसने बताया कि लड़का 3 दिन से टेंशन में था बहुत ज़्यादा। और उसने बताया कि पता नहीं चल रहा था ये लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो दुकान वाला चूँकि अब सबको जानता है, वहाँ ड्यूटी भी करता है हॉस्टल में, तो उसने बताया कि लड़का 3 दिन से टेंशन में था। ये मदर ने बताया, मदर ने डीन से खुद सामने कंप्लेन किया डीन को। अब मदर की तो हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उस कंडीशन में उसने डीन को बहुत कुछ सुनाया और डीन को भी बताया कि लड़के की हमारी रैगिंग हुई है 3 दिन पहले, परेशान किया गया, मारा गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या किया। तो मेरा ये कहना है कि डीन क्या है, बहुत सारे मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, क्योंकि हर आदमी को अपनी कुर्सी पहले से, तो उन्होंने लड़कों तक को दबा दिया कि इंटरव्यू न देने दिया जाए लड़कों को, किसी को कोई लड़के का स्टेटमेंट नहीं देने दिया गया किसी को, और लड़के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मेरा ये था कि उसका मोबाइल तो खैर निकल गया है, मैंने बोला उसे डाटा रिट्रीव, साथ साथ उनके जो 7 लड़के हैं, खासकर जैसे एक लड़का का मैंने बताया यूवी सिंह है और मयंक है और एक जाहिर हुसैन है, जो इनके साथ लड़के, इनके मोबाइल के डेटा निकलवाइए तो आपको फैक्ट पता चल जाएगा कि ये केस जो है रैगिंग का मामला था और आत्महत्या का, क्योंकि ये सारी चीज़ें शेयर तो की है। वो लड़का रात को 1-1:30 बजे तक उस लड़के के घर में बैठा था और रात को 11 बजे एक लड़का उनको लेके गया उसके घर में। ये सारी चीज़ उनको डिस्कशन हुई है, लेकिन क्या हो गया, डर के मारे ये लोग ने केस को दबाना चाह रहे हैं कि जिससे कि ऊपर न जाए केस। तो मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। मैं शासन से रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री को ये सोच कि आज के ज़माने में यदि रैगिंग हो रही तो बहुत शर्म की बात है। और एक परिवार उजड़ गया रैगिंग का, जिनका एक बच्चा, अकेले बच्चा था, और आज उसने सुसाइड कर लिया। कितना बड़ा आघात है उस परिवार में, आप नहीं समझ सकते। तो मेरा यही है कि इसमें उचित कार्रवाई शासन किया जाए और डीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो अभी भी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको लीवापोती कर दिया है, छात्रों को अलग कर दिया, कोई बोल नहीं रहे छात्र, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा छात्र, इनको दबा के रखा गया है छात्रों को भी। तो उनके केवल हमारा ये है कि उनके मोबाइल के डेटा सबके रिट्रीव कराए जाएँ, उससे आपको फैक्ट पता चल जाएगा क्या फैक्ट है। कल मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने हत्या कर दी, क्या मामला है? थाना गढ़ा स्थित मेडिकल कॉलेज में छात्रावास से शिवांश गुप्ता नाम का छात्र 4थी मंजिल से कूद गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें थाना गढ़ा में मर्ग पंजीबद्ध कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। अब परिजनों के कथन लिए जाएंगे, साथ ही वो हॉस्टल में जो उसका रूममेट था और आसपास जो लोग रहते थे और प्रबंधन के कथन लिए जाएंगे और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से इसमें कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घर वाले लोग का आरोप है कि लड़के ने 1 दिन पहले फोन किया था कि मेरे साथ रेगिंग होती है। कोई भी बात जो घर वाले, चाहे रेकिंग की बात हो या कोई प्रताड़ना की बात हो या कोई भी अन्य साक्ष्य हो, अगर किसी भी तरह का आपराधिक तत्व का समावेश इस जांच के दौरान पाया गया तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं या जिन घटना को कारित करने में उसको प्रताड़ना दी है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जांच टीम भी बन रही है, जांच टीम भी बन रही है। इसमें एक उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में सारे पहलुओं की जांच की जाएगी और कोई भी अगर आपराधिक तत्व का समावेश हुआ तो इसमें FIR दर्ज की जाएगी और इसका निराकरण किया जाएगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।